Good morning, everyone. Welcome to the second part of PYQ December 2023. If I am audible and the slides are visible, do let me know in the comment section. And we will start today's class. Fine, let others to join and we'll start the session. Good morning, Deepika. Okay, fine. So without any delay, we will start the session. Those who want to join, they would be joining since we are having another class as well. Okay, so we are doing part 2 for PYQ December 2023. Previous session, we have completed few questions. We would be continuing them. Okay, fine. So the question for the day is this. Forms of the strikes are given and the basic features related to those strikes are given. You have to match what does certain strike means. So we have authorized strike, we have wildcat sit down token strike. So you have to match what is authorized, what is wildcat, what is sit down, what is token strike. Yes, read the options and try to answer in the comment section. I hope the content is visible. Do I need to zoom the slide? Zooming is required or what? Okay, let me do this for you. I hope that would be fine. Yep. So now answer. What is authorized strike? What is wildcat sit down token strike? So once you answer in the comment section, I will be giving the explanation. So the options are, first option is restored to for a shorter period such as day or two, give the employer a warning of likely wider form of consideration if the demands are not promptly conceded. Such strike is useful resorted to in offense to put a pressure on the management when a section of a workman without authorization from the union and often in defense of the direction of the competent authority in a union, called by a proper authority in a union and in conformity with the required laws. Yes, so that's very simple. Okay, very good. So those who have answered option number B is correct. Okay. So the answer for this is option number B. When we talk about strike, what do you mean by strike? So as defined under the section 2Q of the Industrial Dispute Act, strike is something which is complete cessation of the work by the group of the people or group of the employees employed by the employer in an concrete way. In and together, they come together and they refuse to work. That is called as the strike. Now these strikes can be basically divided into authorized and unauthorized strike. What do you mean by authorized strike? The strike which is carried out after taking the consent of the trade union and notifying the employer. This is called as authorized strike. Whereas unauthorized strike are those strike which are not or which are carried out outburst as an outburst of emotional bursting or all of sudden without any consent of the trade union and without notifying the employer. So this is unauthorized. So now when we talk about wildcat strike, wildcat strike is an unauthorized strike. This is also called as the lightning strike, where all of a sudden the employees goes on the strike without any approval, okay, without any conformity. And what is authorized? They take up the conformity. Yes, they notify कि हाँ हम strike पे जा रहे हैं. तो जब आप
परमिशन लेके या कंसर्ट लेके स्ट्राइक करते हो उसे ऑथराइज कहते हैं, और जहां पे ऑल ऑफ सडन आप बिना परमिशन के बिना कंसर्ट के चले जाते हो उसे अनऑथराइज कहते हैं। अब सिट डाउन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक। सिट डाउन स्ट्राइक का मतलब होता है कि यू विल बी कमिंग टू द प्लेस ऑफ द वर्क, आप काम की जगह पे तो आ रहे लेकिन काम नहीं कर रहे हो, कंप्लीटली काम बंद कर दे, सो दैट इज योर स्ट्राइक यूजफुली रिस्टोर्ड इन ऑफेंस टू पुट अ प्रेशर। दिस इज टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट को बताने के लिए कि हम काम बंद कर देंगे, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता, बेसिकली टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू लिसन टू व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, उनकी बात सुनने के लिए वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। टोकन स्ट्राइक या फिर हम इसे क्विकी स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। अब टोकन स्ट्राइक में स्पेसिफिकली एक डेफिनेशन में ये होता है कि डे और टू, ठीक है। अब क्विकी स्ट्राइक में होता है आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कई बार टोकन स्ट्राइक के लिए भी अब आपको आवर्स का ही डेफिनेशन लिख के आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टोकन स्ट्राइक का इज लाइक थोड़ी देर काम कर लिया फिर स्ट्राइक पे चले गए, एक दिन काम कर लिया फिर स्ट्राइक पे चले गए, 2 दिन काम कर लिया फिर स्ट्राइक पे चले गए, दैट इज द टोकन स्ट्राइक एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अरेंज द following welfare facilities provided under the Factories Act of 1948 in the ascending order of their as per their section. This question from the Factories Act is repetitively asked, बहुत टाइम से, आइदर उसके हेल्थ फैसिलिटीज से आइदर वेलफेयर फैसिलिटीज से, सीक्वेंस में लगाने के लिए ये क्वेश्चंस रिपीटेटिवली 2-4 एग्जाम से पूछा जा रहा है। नाउ answer this, arrange this as per the section in ascending means earliest. I am waiting for your answers in the comment section. After that I would explain it. Clear? ठीक है, चलो आंसर। Okay, fine. So the answer for this is option number 2. So when we start with the C, washing facility, जब हम welfare facility की बात करेंगे सबसे पहले है आपका washing facility, उसके बाद में है आपका facilities for sitting, ठीक है। वैसे तो washing facilities के बाद में drying the clothes, ये वाला भी ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला भी वहां पे प्रोविजन दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एक स्किप कर दिया। सो वॉशिंग फैसिलिटी, देन उसके बाद में एज पर दी सीक्वेंस ई फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, देन फर्स्ट एड अप्लायंसेस, देन कैंटीन फैसिलिटीज एंड देन योर क्रेच फैसिलिटी। नाउ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें नंबर्स क्या है। प्लीज एनीवन कैन टेल मी क्रेच फैसिलिटीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कितने वर्कर्स या वुमेन वर्कर्स होने चाहिए फैक्ट्रीज में, तो आपको क्रेच फैसिलिटीज देनी होती है। राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो फॉर द कैंटीन फैसिलिटी राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द नंबर। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट एड अप्लायंसेस टेल मी फॉर एम्बुलेंस, अगर एम्बुलेंस का फैसिलिटी देना है तो नंबर क्या है। दिस फिगर 500, 100, 150, 250, मोर देन, लेस देन है, मोर देन लिखा है, लेस देन लिखा है या फिर केवल 250 लिखा है, ठीक है। ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए। मोर देन का मतलब होता है, लेट्स से मोर देन 250 बोला है तो 251 से शुरू होगा। अगर 250 और मोर लिखा है तो वो 250 से शुरू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यस, सो फॉर द क्रेच इट इज 30 वुमेन वर्कर्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 500 इज योर 500 और मोर इज योर एम्बुलेंस, ठीक है, और फर्स्ट एड इज योर 150, कैंटीन फैसिलिटी इज योर चलो कैंटीन का बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
मोर देन 500, वेरी गुड. जो जिन्होंने मुझे करेक्ट किया, मोर देन 500, वेरी गुड. इट्स नॉट 500 और मोर, इट्स मोर देन 500, वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटिंग टू लॉकआउट? अब स्ट्राइक से रिलेटेड क्वेश्चन आया. स्ट्राइक इज एन एम्प्लॉइज वे टू व्हाट यू कैन से प्रोटेस्ट, और लॉकआउट एम्प्लॉयर के साइड से होता है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है. चलो, वेरी गुड. कैंटीन इज 250. चलो आंसर कीजिए. व्हाट इज लॉकआउट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिलेटिंग टू द लॉकआउट? लॉकआउट इज अ क्लोजर ऑफ अ प्लेस ऑफ अ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट or a suspension of work. Lockout is an antithesis of the strike. Lockout is a closure of an industrial undertaking because of the existence or apprehension of industrial dispute, violence and damage. The lockout means termination of employment by the retrenchment. What do you mean by lockout? So section number, we have section number 2L, which defines the lockout. What do you mean by lockout? Lockout is, and first thing that you need to know about this is, it's an temporary closure. ये temporary closure होता है place of employment का, और जो closure होता है वो permanent suspension of work होता है. Temporary suspension of work lockout होता है. Yes, first one is lockout is a closure of a place of a business or employment or suspension of the work. Yes, so this is the correct option. It is an antithesis of the strike. इसका मतलब, see, whenever the employees are on illegal strike, या फिर employees are on the strike which are of no, like they are not being controlled, या opposite बोल लीजिए आप इसका, ठीक है. सो स्ट्राइक का अपोजिट लॉकआउट, यानी एम्प्लॉयर स्ट्राइक, एम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं, एम्प्लॉयर लॉकआउट करता है, ठीक है. और यस, अगर वायलेंस होगा, डैमेज होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्टेंस में है, तो एम्प्लॉयर लॉकआउट कर सकता है. द पर्पस ऑफ लॉकआउट इज टू मेक एम्प्लॉयज वर्क ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयर. जब एम्प्लॉयर को लगता है कि एम्प्लॉयज मेरी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है, बात नहीं मान रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे? उनको लॉकआउट कर देंगे. क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली रीडेबल. अच्छा, ठीक है, आई विल जूम द क्वेश्चंस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर था ए, बी एंड सी. डी इज नॉट करेक्ट. टर्मिनेशन बाय रिट्रेंचमेंट नहीं है. रिट्रेंचमेंट क्या होता है? कितने लोगों ने 3, आई डेंट सी द आंसर्स वाज, जितने लोगों ने 3 और 4 मार्क किया है, रॉन्ग. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ठीक है. ए, बी, सी करेक्ट है, यानी 1 करेक्ट है, डी नहीं करेक्ट है. रिट्रेंचमेंट यानी लॉकआउट नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो दिस इज व्हाट द लॉकआउट इज. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ. लेट मी जूम दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसपे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें करना चाहिए क्या, क्लेम. चलो आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिलेटिंग टू ह्यूमन पर्सनैलिटी? द वर्ड पर्सनैलिटी कैन बी traced to the Latin words persona. The meaning of the word persona when translated into English is to look through. Human personality include external appearances and behavior. Human personality includes inner awareness of self as a permanent organizing force. Choose the correct option. Yes, answer. Now is that clearly visible? चलो, आंसर. इनमें से क्या सही होगा? सो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर, दीपिका हैज आंसर्ड बी. वेटिंग फॉर अदर्स.
See, when I say personality, I have my own personality. Each one of you have your own personality. Now understand this. When you talk about your personality, personality is external as well as your internal thing also. ठीक है, दोनों चीजें होती हैं. Personality is taken up from the Latin word persona, but it does not mean look through. It's not visibility. ठीक है, द आंसर फॉर दिस इज ACND. लुक थ्रू नहीं होता है. द लैटिन वर्ड persona means to speak through. Please correct this. It's not look through. Personality is not about how you are being appeared. It's more than that. What your personality is speaking. What is your interpretation to certain thing. ठीक है. So personality means how people affect others and how they understand and view themselves. As well as there are pattern of inner and outer measurable trait and the person's situational intervention. कई बार मेरी पर्सनालिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिचुएशन पे डिपेंड करता है. मुझे किसी सिचुएशन में बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी सिचुएशन में गुस्सा ही नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को गुस्सा आ रहा है, आई एम सिटिंग कामली. बाकियों को गुस्सा नहीं आ रहा लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है. सो दैट इज सिचुएशन के हिसाब से भी मेरी पर्सनालिटी के कुछ ट्राइट्स वैरी कर सकते हैं. सो इंटरनल और एक्सटर्नल. इन अदर वर्ड्स पर्सनालिटी रेफर्स टू दैट रोल which a person displays to the public. Personality is used in the terms of influencing the others through external. You influence people. आप दूसरों को influence करते हो अपने external appearance से, but inner आपकी इंटरनल ट्राइट्स भी होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है. तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप लोगों के ऊपर एक्सट्रोवर्ट का इंप्रेशन नहीं डालोगे, आप इंट्रोवर्ट का ही डालोगे. ठीक है. सो इट इज एन इंटरनलाइज्ड सिस्टम which includes all those aspects of the person that are inherited as well as learned. पर्सनालिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में इनहेरिटेड होते हैं, कुछ आप सीखते हो. ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, ये सीखे जा सकते हैं जिनको आप अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज व्हाट अ PYQ. ये एक PYQ है जिसे पिछली बार एग्जाम मार्च 2023 में पूछा गया था. बस इतना डिफरेंस है, इसमें लिखा है व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ माइग्रेशन. वहां था व्हाट आर दी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, वहां पे नॉट लिखा हुआ था, यहां नॉट हटा दिया है. बाकी सारा का सारा ऑप्शन वैसे ही है. जिसने मेरा PYQ का क्लास किया होगा या लेबर मार्केट का PDF पढ़ा होगा उसके लिए बहुत इजी रहा होगा. ठीक है, नॉट को हटा दिया, बाकी सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं. व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ माइग्रेशन. अब माइग्रेशन यहाँ पे किससे रिलेटेड है? लेबर माइग्रेशन. जो लेबर है अपने जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके क्यों जाती है, उसके इकोनॉमिक कॉजेस क्या है. सी पर्सनल कॉजेस हो सकते हैं, मॉनेटरी, इकोनॉमिक यानी मॉनेटरी कॉजेस हो सकते हैं, सोशल कॉजेस हो सकते हैं, कल्चरल कॉजेस हो सकते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमिक क्या है. बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैरिज, हायर वेज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, attraction of better facilities and infrastructure. Yes, so the answer for this has to be your option number C. A, employment opportunity, पैसा कमाने के लिए जा रहे हो ना तो इकोनॉमिक रीजंस. हायर वेज, पैसा कमाने जा रहे हो, इकोनॉमिक रीजंस. अट्रैक्शन ऑफ बेटर फैसिलिटी, ये भी अच्छा घर चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो ये भी आपका इकोनॉमिक रीजन है. मैरिज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मैरिज इज योर कल्चर या सोशल रीजन. सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो योर सोशल रीजन. मैरिज आपका ये पर्सनल रीजन भी हो सकता है. सो वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स विच लीड्स टू व्हाट? लेबर माइग्रेशन. फर्स्ट थिंग, लेबर माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन, लेबर माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन जियोग्राफिकल लोकेशन टू अनदर फॉर परमानेंट और पार्शियल सेटलमेंट. ठीक है, परमानेंट या पार्शियल सेटलमेंट के लिए जब एक पर्सन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाता है उसे हम क्या कहेंगे? माइग्रेशन कहेंगे. अब द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कॉजेज द माइग्रेशन और मोटिवेट द पीपल टू मूव may be broadly classified as.
अब ये अपकमिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या होते हैं आपके, एज, योर एरिया, ठीक है। सोशल कल्चर फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल लॉ बदल गया, हमारे मैप्स चेंज हो गए, टेरिटरी बदल गई, ये सारे पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है। अब जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं इनको हम वॉलेंट्री रीजंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री रीजंस। क्यों वॉलेंट्री रीजंस कहते हैं, क्योंकि कोई भी डेवलप्ड एरिया में डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तभी जाएगा जब उसको ज्यादा, उसकी अपनी वॉलेंट्री इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं। सो कई बार द मेजर रीजन फॉर द वॉलेंट्री माइग्रेशन इज इकोनॉमिक इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। जो हमारी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री है, लो एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो रिजल्ट, जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब हम ग्रोथ की बात करेंगे, हायर वेजेस की बात करेंगे, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। एक चीज आप इसमें याद रखेंगे कि कई बार इवन द पॉपुलेशन, जब आपको लगता है ना कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे इंडिया से अमेरिका लोग जाते हैं, क्यों, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो बाकी कंट्रीज में जाके वो शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक रीजन है। मैन हाई मैन लैंड रेशो, मतलब ये पूछा जा सकता है कि अगर हाई मैन लैंड रेशो है, एक लैंड पे जितने लोग हो सकते उससे ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो भी ये रीजन हो सकता है आपका माइग्रेशन के लिए। अब इसके अंदर में जो इकोनॉमिक फैक्टर है, इसके अंदर में दो फैक्टर्स और आते हैं, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। पुश फैक्टर यानी जैसे आपके और लोकेशन में लो प्रोडक्टिविटी है, पॉवर्टी है, नेचुरल रिसोर्सेज जिससे इनकम होगी वो नहीं है, ये फैक्टर आपको पुश कर देते हैं। यानी डेफिशिएंसी जब होती ना कोई चीज की, वो आपको कंपेल करता है, वो आपको पुश करता है माइग्रेट करने के लिए, तो हम उसे कहेंगे पुश फैक्टर। पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे गुड अपॉर्चुनिटी, सो अबेंडेंस जहां होगी, सरप्लस जहां होगा, जैसे अपॉर्चुनिटीज फॉर दी बेटर एम्प्लॉयमेंट, हायर सैलरी, ये क्या होंगे, अट्रैक्टिंग फैक्टर्स है, ये आपको पुल कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर के पुश फैक्टर कौन से हैं, पुल फैक्टर कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। अब सोशो कल्चर फैक्टर में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट, शादी हो गई, मैरिज हो गया, तो ये सारी चीजें आपके सोशल कल्चर फैक्टर। पॉलिटिकल में क्या आएगा, पॉलिटिकल में जैसे गवर्नमेंट ने लॉज, गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये टेरिटरी डिवाइड हो गई है, अब हम इस स्टेट को ये स्टेट बोलेंगे, राइट। सो दिस इज द पॉलिटिकल फैक्टर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is very simple. So the question is asking you, under the provision of the Minimum Wages Act 1948, the representation of independent members in the Central Advisory Board shall not exceed. चलो इसको आंसर करिए, फिर I will explain. In the under the Minimum Wages Act, the representation of independent members बोला है, किसका बोला है, independent member shall not exceed for Central Advisory Board. Yes, 1/4 of the total number, 1/2 of the total number, 1/3 of the total numbers, 2/3 of the total numbers. Yes, many of you have answered it correct. So the answer for this is option number 3, 1/3 of the total number. क्या होगा इसका आंसर, 1/3. Now understand this. Minimum Wages Act of 1948. This act came into the existence with an objective of providing minimum substantial surviving wages to the employees in order to prevent the exploitation from the employer. Minimum wages make sure that there is fixing and revision
of minimum wages by appropriate government on timely basis. Government can fix the minimum wages for the different employment which are given in the schedule. There is only one schedule, एक ही schedule है. तो appropriate government पार्ट ए या पार्ट बी में जो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, मैं फिर से बोल रही हूं, स्केड्यूल्ड, सभी के लिए नहीं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी, स्केड्यूल्ड यानी ये जो पार्ट ए में और पार्ट बी में, ये आपका ये एग्रीकल्चर है, ये नॉन एग्रीकल्चर है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर. ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है मिनिमम वेजेस. और ये मिनिमम वेजेस फिक्स करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो हम डिटेल में लॉ में पढ़ेंगे. बेसिकली मिनिमम वेजेस को रिवाइज क्यों किया जाता है, यूजुअली एवरी 5 इयर्स, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. 5 इयर्स में रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस टेक्स प्लेस. किसी भी लोकेशन के लिए, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जब मिनिमम वेजेस फिक्स होते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखा जाता है. महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जिसे हम कहते हैं, कि उस एरिया का, उस एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्चा कितना है, और हर 5 साल में इसको रिवीजन करना, रिवाइज करना जरूरी है. ठीक है, अब इसके लिए बॉडीज क्या है, बॉडीज है हमारी एडवाइजरी बोर्ड एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड. इसके पहले मिनिमम वेजेस के अंदर में 2 मेथड्स होते हैं, एक है कमिटी मेथड और एक है नोटिफिकेशन मेथड, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है या रिवाइज करती है. ठीक है, रिवाइज करती है किसको, दिस पार्ट 2 इज एग्रीकल्चर. थैंक यू निशा. दिस पार्ट ए इज नॉन एग्रीकल्चर. कमिटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड से मिनिमम वेजेस क्या किए जा सकते हैं, फिक्स किए जाते हैं. कमिटी मेथड में क्या होता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक कमिटी बनाती है जिसके अंदर में इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं एंड एम्प्लॉयर होते हैं, और इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं. सेम अब कमिटी मेथड में ये कमिटी नोटिफिकेशन देगी कि हम ये मिनिमम वेजेस अब की बार फिक्स कर रहे हैं. वो क्या करेगी, नोटिफिकेशन देगी, कमिटी डिसाइड करेगी. जबकि नोटिफिकेशन मेथड में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में, नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में कि हम ये फिक्स कर रहे हैं मिनिमम वेजेस या रिवाइज कर रहे हैं मिनिमम वेजेस. तो ये दोनों हो गए हमारे मेथड. अब ये जो कमिटी है, और इसमें सब कमिटी बनाई जा सकती है इसको, कमिटी को हेल्प करने के लिए. इसके अलावा हमारी एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होती है. एडवाइजरी बोर्ड ये स्टेट लेवल पे होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है. इसका कंपोजिशन एग्जैक्टली कमिटी के जैसा सिमिलर होता है. एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है कमिटीज और सब कमिटीज और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि मिनिमम वेजेस क्या हो सकते हैं, कैसे फिक्स करने चाहिए. अब सेंट्रल एडवाइज और ये एडवाइजरी बोर्ड कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज को कमिटीज और सब कमिटीज की. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या कॉन्स्टिट्यूट करती है. इसका कंपोजिशन भी यही होता है, इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट पर्सन 1/3. इसका काम होता है कि एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या फिक्स किया जा सकते हैं मिनिमम वेजेस और कब रिवीजन हो सकता है. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Oh, now this is okay, new concept for you all. I will explain this. In an income ledger diagram, the wage rate is graphically presented by slope of indifference curve, curvature of indifference curve, slope of budget line, tendency of a budget line with the indifference curve. Answer. चलो, इनकम लेजर लेबर मार्केट का क्वेश्चन है.
इनकम लेजर डायग्राम के अंदर में वेज रेट किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं ग्राफिकली? यस, ठीक है। आई बिलीव दिस इज लाइक टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, सो आई वुड आंसर दिस। बेसिकली द आंसर फॉर दिस इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब ये बजट लाइन का कंसेप्ट क्या है क्या ये बजट लाइन? सी, फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस कर्व? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? नहीं, कर्वेचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व से वेज रेट नहीं होता है, वो वेज रेट नहीं शो करता है, ठीक है। इसको समझते हैं। इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? सी, व्हेन फॉर अ कंज्यूमर, हम पहले कंज्यूमर से समझेंगे, फिर हम लेजर और इनकम का डायग्राम समझेंगे, ठीक है। सो एक इसको हम इनडिफरेंस कर्व को हम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस का मतलब होता है कोई डिफरेंस नहीं होना, कोई डिफरेंस नहीं होना। सो इनडिफरेंस कर्व कहता है कि एक कंज्यूमर के लिए ए गुड है और बी गुड है। या मैं ऐसे लेके चलती हूँ, एक किड है, एक बच्चा है, उसके पास में कुछ चॉकलेट्स हैं और उसके पास में कुछ आइसक्रीम्स हैं। तो इस बच्चे के लिए ना चॉकलेट भी उसको पसंद है, आइसक्रीम भी उसको पसंद है। तो मैंने अगर उसको 10 चॉकलेट्स दी और 10 आइसक्रीम्स दी, द सेटिस्फैक्शन फॉर हिम वॉज गुड। वो बहुत खुश हुआ, उसको 10 आइसक्रीम दी, 10 चॉकलेट दी, वो खुश है। दूसरे दिन मैंने उसको 15 चॉकलेट्स दी और 5 चॉकलेट्स दी और 15 आइसक्रीम दी, वो तभी भी खुश है, उसका हैप्पीनेस उसी लेवल पे है। और थर्ड डे मैंने उसको 15 चॉकलेट्स दिए और 5 आइसक्रीम दी, उसकी लेवल ऑफ हैप्पीनेस वही है। सो इनडिफरेंस क्या कहता है? व्हेन द कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन? व्हेन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या इक्विटी क्रिएट करे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। चाहे वो 10 चॉकलेट खाए, 10 आइसक्रीम, चाहे 5 खाए, लेकिन ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो इक्वल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे ये जो प्रोडक्ट होते हैं जिसके अगेंस्ट दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हैं ना। यहाँ पे 10 चॉकलेट थे तो 15 आइसक्रीम दे दी, सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने 5 को। जो प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ऐसे केस में एक प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होगा दूसरे का कम होना जरूरी है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरे का कम होना जरूरी है। अब जब मैं इस कंडीशन को ग्राफ पे बनाने की कोशिश करती हूं, लेट्स से ये चॉकलेट है, ये आइसक्रीम है, तो इससे जो कर्व बनेगा उसे हम इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। सो 5, 10 और ये 15, ठीक है, 5, 10, 15। अब पहला क्या है? 10, 10, यहां पे भी 10, ठीक है, यहां पे भी 10 बन गया। दूसरा क्या है? 5 चॉकलेट, 15, ये यहां पे। दूसरा क्या है? फिर क्या है? थर्ड वन 15 और ये 5। अब मैं इसको जब ड्रॉ करती हूं, ये लाइन ऐसे जाती है। दिस इज इनडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं इसे? इनडिफरेंस कर्व। The properties of indifference curve is that it is convex to the origin.
ठीक है। और एज यू मूव हायर, यानी ये क्या था, 5-10 का कॉम्बिनेशन था, 5 और 10 15। अब मैं इसका नंबर बढ़ा देती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ लेट्स से 20 मैंने उसको चॉकलेट दिए और मैंने 10 उसको आइसक्रीम दी। फिर दूसरे दिन में मैंने उसको 15 चॉकलेट्स दिए और 15 आइसक्रीम दी, और उसके बाद 10 चॉकलेट्स दिए और 20 आइसक्रीम दी। जब ये यहां ड्रॉ होगा ये ऊपर आएगा, 20 पे आएगा, ठीक है। ये ऐसे सपोज ऐसे आएगा। तो इंडिफरेंस कहता है एज यू मूव हायर, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आपका कर्व ऊपर को मूव होगा, द सैटिस्फैक्शन इंक्रीजेस। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द सैटिस्फैक्शन। द रीजन, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो प्रोडक्ट उसको पसंद है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है ना। क्वांटिटी, मेरे को 10 चॉकलेट की जगह 20 मिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली मैं ज्यादा खुश होंगी। तो एज यू मूव हायर सैटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है। दूसरा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यहां पे आके वो इंटरसेक्ट नहीं होता है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कभी भी जब ये सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी 15 है, इनकी टोटल एक ही होनी चाहिए। ये कितना हो रहा है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी टोटल 20 है, यहाँ पे भी 20 है, मतलब उनका सेटिस्फैक्शन एक ही है। तो जब 20 सेम है, यहाँ पे क्या है 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, सेटिस्फैक्शन लेवल एक ही रहेगा। तो जब आपको सेटिस्फैक्शन लेवल एक ही रखना है तो यहाँ पे एक को सब्सटीट्यूट करोगे, दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। एक को कम करोगे दूसरा बढ़ेगा, एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, जिसकी वजह से ये कर्व हमेशा मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब ये जीरो हो गया तो वो यहां आके इंटरसेक्ट करेगा। जीरो होना यानी उसकी सेटिस्फैक्शन जीरो हो गई, यानी वो क्या कह रहा है कि नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, आइसक्रीम ही चाहिए, वो खुशी नहीं है, तो उसका सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाएगा, जो कि इंडिफरेंस कर्व में पॉसिबल नहीं है। वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी है, ठीक है। दिस इज व्हाट अ सिंपल इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक। ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया है आपको। अब इनकम लेजर का मैं मतलब समझाती हूं। अब आई विल जस्ट क्लियर दिस सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इनकम लेजर वाला डायग्राम। इसी चीज को इनकम एंड लेजर, अब ये दो चीज हैं क्या। सी, एक इंडिविजुअल इसको जब सैलरी मिलती है या जो भी वेजेस होते हैं, ये वेजेस वो खर्चा कैसे करेगा या वेजेस जो उसको कंपनी ऑफर कैसे करेगी, दो चीजों पे डिपेंड होता है। एक इंडिविजुअल के लिए, सपोज लेट्स से ए कंपनी है, बी कंपनी है। ए कंपनी ने उसे 15,000 ऑफर किया है और बी ने उसे 20,000 ऑफर किया। तो मैं जो हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं 15,000 की जॉब करूंगी या 20,000 की जॉब करूंगी। ऑब्वियसली मैं 20,000 का ऑफर एक्सेप्ट करूंगी। क्यों, क्योंकि मैं जब ये डिसाइड करती हूं ना कि मुझे 15,000 या 20,000 की जॉब एक्सेप्ट करनी है, मैं दो चीजें ध्यान में रखती हूँ। एक मेरा इनकम, एक मेरा लेजर। यानी मेरे जो 20,000 रुपए में है, मेरा डेली का जो खर्चा है, कंजम्पशन है, खरीदने का खर्चा, डेली का कंजम्पशन, वो भी हो जाएगा। साथ ही मेरा लेजर यानी मेरी जो सेविंग्स होगी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 15,000 में। सो लेट्स से अगर मेरा 5,000 का डेली का खर्चा है, रूम रेंट है, 2,000 ट्रैवलिंग में लगता है और उसके बाद में 3,000 मुझे और बाकी लग जाता है, तो ये 5 और ये 5, 10,000 तो मेरा क्या हो रहा है, ऐसे ही खर्चा हो जा रहा है। 10,000 रुपए खर्चे में जा रहा है, कंजम्पशन में जा रहा है, गुड्स बाय करने में जा रहा है। और बचे 5,000 मैं बस सेव कर रही हूँ अपने लेजर यानी फ्री टाइम के लिए, एंजॉय करने के लिए। इसी तरीके से 20,000 जब मुझे मिल रहे हैं तो 10,000 तो चलो मेरा खर्चे में चल गया, लेकिन मेरा बच कितना रहा है, 10,000 रुपए बच रहे हैं। तो यहां मेरा लेजर टाइम ज्यादा है, इनकम भी अच्छी हो रही है, लेजर भी अच्छा मिल रहा है।
तो मैं एज एन इंडिविजुअल दो चीजें ध्यान में रखती हूं, एक तो मेरा इनकम खर्चा कितना है, ऊपर से मेरा लेजर मुझे कितना मिल रहा है। तो अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि भले ही एक इंडिविजुअल है, उसके लिए ये इनकम का पैसा, जो पैसा वो कमा रहा है या वेजेस जो कमाने वाला है, उसके लिए उसके पास 24 घंटे ही है। इसकी ये लिमिटेशन क्या है कि 24 घंटे है, और वो जो वेज कमाएगा वो लिमिटेड है। उसी तरीके से लेजर जो है, यानी वो जितना लाइफ को एंजॉय करेगा या दिन भर में आराम करेगा, उसके लिए भी 24 घंटे ही है उसके पास। तो लिमिटेशन क्या है, 24 घंटे है। उसको 24 घंटे में ही काम भी करना है, लेजर भी एंजॉय करना है। अब थोड़ा सा इसको सोच के देखो। लेट्स से एक एम्प्लॉय की सैलरी थी 5,000 रुपए। कितनी थी, 5,000। अब ये क्या करता था, 8 घंटे काम करता था। 8 घंटे काम करने के बाद में 3,000 रुपए खर्चा होते थे, 2,000 रुपए, और बाकी जो उसका था लेजर टाइम में स्पेंड करता था। अब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी खाने पीने का खर्चा बढ़ गया। खाने पीने का खर्चा बढ़ गया तो क्या हुआ, अचानक से उसी 5,000 की सैलरी में उसको ना 4,000 रुपीज खाने पीने में लगने लगे। तो अब वो तो ये सोचेगा ना कि लेजर तो मुझे कम हो गया, मेरा फ्री टाइम, मेरी सेविंग्स कम हो गई। तो ऐसे इसमें बंदा क्या करेगा, ऐसे इसमें वो सोचेगा कि मेरे जो वर्किंग आवर्स है, मैं जहां काम कर रहा हूं वर्किंग आवर, मैं उसको बढ़ाऊंगा। यानी 24 घंटे में से अगर वो पहले 8 घंटे काम करता था, अब वो 9 घंटे 10 घंटे काम क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका आराम करने का वक्त यानी लेजर टाइम कम हो जाएगा। तो इसको सोच के देखो कि इनकम अगर बढ़ानी है तो लेजर कम होगा ना, अगर लेजर बढ़ानी है तो वर्किंग आवर्स कम होंगे। तो वही इंडिफरेंस कर्व का रिलेशनशिप यहां पे है, इनकम और लेजर में वही रिलेशनशिप है कि एक इंडिविजुअल के लिए वो 8 घंटे काम कर रहा है, 3,000 रुपए कमा रहा है, 2,000 रुपए लेजर है, वो हैप्पी है, ही इज हैप्पी। वो 4,000 और 4,000 के खर्चे पे, 1,000 रुपए, 1,000 के लेजर पे अगर वो हैप्पी होता तो ठीक है, हैप्पी होता तो सेटिस्फैक्शन वही है। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई तो उसने क्या किया, अपना काम बढ़ा दिया। तो काम बढ़ाएगा, वर्किंग आवर्स बढ़ाएगा तो लेजर डिक्रीज होगा। तो इनकम और लेजर का जब हम इनडिफरेंस कर्व बनाते हैं वो इस तरीके से आता है। अब इसके अंदर में बजट लाइन का मतलब क्या है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, इनडिफरेंस कर्व, इनकम और लेजर क्लियर है सभी को? प्लीज लेट मी नो। हाँ, जस्ट 2 मिनट्स प्रवीण, जस्ट 2 मिनट्स, आई विल एंड इट। सभी को क्लियर है? अब बजट लाइन का मतलब क्या है, बजट जो है ना, ये इस पे डिपेंड करती है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर पास में ना केवल 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए। उन्हीं 24 घंटे में उसको क्या करना है, इनकम भी अर्न करनी है, लेजर भी अर्न करना है। तो कहीं ना कहीं अगर वो इनकम बढ़ाना चाहता है, लेजर कम होगा। तो बजट लाइन का मतलब क्या है कि वेयर लेजर इज मेजर्ड इन राइटवर्ड डायरेक्शन। सपोज मैंने ये लेजर का यहां पे बनाया और इनकम का यहां बनाया, ओ से लेके एम तक और ओ से लेके टी तक। ओ एम ये इनकम अर्न करने के लिए, ये इनकम अर्न करने के लिए यहां से लेके यहां तक का उसको क्या करना पड़ेगा, काम। लेजर ये है, ये लेजर होगा, ये इनकम होगा। ये जब ये चीज उसको चाहिए होगी, यानी ओ एम का इनकम और ओ टी का लेजर, ये अटेंड करने के लिए उसको वेजेस ये चाहिए, और इसे हम कहते हैं बजट लाइन। तो बजट लाइन शो करती है वेज। तभी पॉसिबल होगा ना, एक वेज रेट पे मेरी इनकम जैसे 5,000 रुपए है, मैं लेजर 1,000 रुपए ले रही हूं, तो ये जो है ये मुझे शो करती है, ये बजट लाइन, इसे कहते हैं द बजट लाइन शोज द वेज रेट। आगे बात समझ में? तो इसको आप याद रखेंगे, डिटेल में हम लेबर मार्केट की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे हम
इनकम लेजर कंस्टेंट भी कहते हैं। इनकम लेजर कंस्टेंट डिटेल में योर हमारे पढ़ाई ऐप पे डिटेल की लेबर मार्केट की क्लास होगी। सो दैट वाज द सेशन फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी आर हैविंग अ क्लास एट पढ़ाई